Good morning, everyone. Once again, you are most welcome in St. Xavier School's online classes. So, guys, I hope you all will be fine at your home. So, in today's class, we shall discuss about tense, because in English, tense is the base root of all things. So, we must have all type of information regarding tense. So, as you know, that tense includes all things which happens in present, past and future. So, what shall be the definition of tense? The form of a word or verb which tells us about the time in which an action happens. Means tense, dear students, फॉर्म ऑफ ए वर्ड और वर्ब, शब्द का वो रूप या किसी क्रिया का वो रूप जो हमें किसी कार्य के किसी निश्चित समय में होने का आभास कराए। मीन्स शब्द के जिस रूप से हमें किसी कार्य का किसी समय में होने का पता लगे, तो that words are called tense. As you know, we have divided tense into three parts. Okay, the first part is present tense. The second part is past tense, and the third part is future tense. Got it? Present tense means it will tell us about the present time. Means when an action happens, so it will only represent the present time. The time which has gone included into past tense. So we must know that past tense always tells us about past time, and the time which is about to come is included in future tense. So the future tense will tell us about the future time. Got it? If anyone asks, यदि कोई आपसे पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम किस समय के बारे में बात करता है, पास्ट टाइम, तो आपको क्लियर होना चाहिए. Got it? Next thing is there, each tense has been classified into four parts. As I have told you earlier also, that each tense has been divided into four parts. Means present time has been divided into four parts, as well as past tense also has been divided into four parts, and so as the future tense has been divided into four parts. Means प्रत्येक टेंस को हमने चार चार भागों में बांट रखा है. किस प्रकार से? फर्स्ट पार्ट इज indefinite part, so it is called indefinite tense. Second
part is continuous tense, means second part is known as the continuous. Third one is there perfect tense, and fourth and last one is there perfect continuous tense. So each tense has been divided into 4 parts, and the name of the parts are this. First part of every tense will be called indefinite tense, as you can represent it present indefinite, past indefinite and future indefinite. So shall be the second part, present continuous, past continuous, future continuous. Like this, the perfect part, present perfect, past perfect and future perfect. Got it? मीन्स प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में बांट दिया है, जिसके चारों भागों का नाम एक जैसा होता है, लेकिन जिस टेंस का हमें काम में लेना है उसी टेंस का नाम इनके आगे ऐड कर लेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डज द इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट मीन्स. कि इंडेफिनिट तो किन बातों को बताता है, कंटिन्यूस किन बातों को बताता है, परफेक्ट किसको बताएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस किसको बताएगा. सो फर्स्ट पार्ट यू हैव टू नोट डाउन इट बेटा. फर्स्ट पार्ट नेम इज देयर इंडेफिनिट टेंस. दिस पार्ट इज यूज्ड to tell about the general information of any action. Got it? मीन्स इंडेफिनेट पार्ट का यूज बेटा अपन किसी भी काम की सामान्य सूचना के बारे में, किसी के काम के होने की सामान्य जानकारी बताने में इसका प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट वन इज देयर कंटिन्यूस पार्ट. दिस पार्ट इज यूज्ड to tell about the running action और you can call it work. कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग बेटा सभी टेंसों में कंटिन्यूस पार्ट का यूज करेंगे किसी भी कार्य के गतिमान होने के, यानी कि कार्य घटित हो रहा है या कार्य चल रहा है या कार्य हो रहा है, उसके लिए हम किस पार्ट का यूज करेंगे, कंटिन्यूस का करेंगे. थर्ड वन इज देयर परफेक्ट टेंस. दिस पार्ट इज यूज्ड to tell about the completion of any action, or you can call it work. जैसा इसका नाम है बेटा परफेक्ट, परफेक्ट पार्ट का प्रयोग हम किसी भी कार्य के पूर्णता के बारे में प्रयोग करते हैं कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ. नहीं होता है तो भी परफेक्ट का करते हैं, और कार्य पूर्ण हो जाता है तो भी परफेक्ट पार्ट का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट वन इज देयर द फोर्थ पार्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस.
This part is used to tell about such actions which started in past time but still in running position. परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज बेटा उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो किसी समय भूतकाल में शुरू हो गए थे, यानी कि पास्ट में शुरू हो गए थे, बट लेकिन स्टिल इन रनिंग पोजीशन, अभी भी वो कार्य चल रहे हैं, यानी कि घटित हो रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई करना प्रारंभ किया था, बहुत साल पहले किया था, लेकिन आज भी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। present indefinite tense. So there are two ways of studying tense, dear students. The first way is of translation and the second way of is gap filling. So in gap filling we need English identification, but in translation we need Hindi identification, because we will translate Hindi sentence into English, then we need Hindi identification. समझ गए? So identity of this tense and in Hindi, because sometimes we need ट्रांसलेशन ऑल्सो, कभी कभी हमें ट्रांसलेशन की भी, अनुवाद की भी आवश्यकता होती है। तो अनुवाद करने के लिए हम किस प्रकार से इनकी पहचान को व्यक्त करेंगे? सो लुक, इफ एनी ऑफ द हिंदी अल्फाबेट और वर्ड्स like ता है, ती है, ते है, ताहू, etc. comes at the end of any Hindi sentence then that sentence belongs to present indefinite, or you can call it simple tense. सो बेटा ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो। ये इसकी पहचान है कि यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंतिम शब्द इनमें से कोई हो, ता है, ती है, ते है, ताहू, etc. स्पेशली यू हैव टू नोटिस दिस हिंदी अल्फ़ाबेट है। इफ दिस अल्फ़ाबेट कम्स एट एनी ऑफ हिंदी सेंटेंस, यानी कि यदि यह जो अक्षर है
हिंदी का, ये किसी भी वाक्य के अंत में आता है तो डेफिनेटली वो टेंस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके पार्ट को कौन सा शब्द रिप्रेजेंट करेगा कि ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है या कोई दूसरा है। तो जो ये शब्द है ता है, ती है, ता ते ती, ये जो शब्द है ये बेटा इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है जो है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? तो ये आइडेंटिफिकेशन लर्न रखनी है। नाउ इसका आता है टाइप ऑफ सेंटेंस। सो एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि हमने वाक्यों को स्विधा की दृष्टि से काफ़ी भागों में बांट रखा है। तो जो सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वो आई थिंक आप में से बहुत सारे जानते होंगे, जिसका क्या नाम है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, और हिंदी में जिसे आप बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने से पहले हमें उस वाक्य की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तब ही हम इजीली किसी भी वाक्य को बना पाएंगे। सबसे पहले वाक्य की पहचान हो जानी चाहिए, फिर उसका स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देख लीजिए, सभी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम वाक्य को स्टार्ट करेंगे किससे? सब्जेक्ट से, ठीक है। फिर यदि ज़रूरी है तो हम किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। एच डॉट वी डॉट का अर्थ है हेल्पिंग वर्ब। फिर हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का। फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद में यदि एडवर्बल वर्ड आते हैं तो उसका यूज करेंगे, जो भी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर जो सभी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी प्रकार से पास्ट के भी चाहे किसी का भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर यही है। अब टेंस के अकॉर्डिंग दो चीज़ें परिवर्तित होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। एक तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तित हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या परिवर्तित हो जाता है? मेन वर्ब। बस इन दो चीज़ों में परिवर्तन होगा। अब सिंस चूंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैं अभी आपको चेंज दिखाता हूँ क्या होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है वो देखिए क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करते हैं? एक डू का करते हैं, दूसरा किसका करते हैं? डज का करते हैं। इनके साथ जो वर्ब का फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा? डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये कब आएगा ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले आप ये समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस ये कब यूज होती है। तो बेटे ये केवल यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों नहीं हुआ? तो बेटा प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। उसमें हम केवल किसका यूज करते हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का। कैसे होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कब होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। नंबर आपको पढ़ा रखे हैं, पहले की क्लासों में पढ़े होंगे आपने, कितने नंबर होते हैं वो आपको पता होगा। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिपेंड, तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और ये जो है आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। गॉट इट? ओके गाइज, write down and learn also.